ஸ்ரீ சாய் பாபா சன்ஸ்தான் பசுமை ஆற்றலை நோக்கி ஒரு வலுவான அடியை எடுத்து வைக்கிறது. சூரிய சக்தி திட்டங்கள் மின்சார சேமிப்பிற்கு ஒரு பெரிய ஊக்கத்தை அளிக்கின்றன. சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பசுமை ஆற்றலின் பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதற்காக ஸ்ரீ சாய்பாபா சன்ஸ்தான் ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. அதன்படி சன்ஸ்தானின் பல்வேறு கட்டிடங்களின் கூரைகளில் 1709.92 கிலோவோல்ட்ஸ் பவர் திறன் கொண்ட மின்கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட கூரை சூரிய ஒளிமின்னழுத்த சோலார் PV திட்டம் ஒன்று அமைக்கப்படும். இந்த திட்டத்திற்காக பாரத் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் BPCL தனது பெருநிறுவன சமூக பொறுப்பு CSR நிதியிலிருந்து சுமார் ரூபாய் 4,45,00,000 நிதியுதவி வழங்கும். மீதமுள்ள செலவை சன்ஸ்தான் ஏற்கும். இந்த திட்டத்திற்காக சன்ஸ்தானுக்கும் BPCL-க்கும் இடையே ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. ஷீர்டி தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பாபுசாஹேப் வாச்சோரே, சன்ஸ்தான் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கோரக்ஷ் கடில்கர், துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பீம்ராஜ் தராடே, செயல் பொறியாளர் பிக்கன் தவடே, தலைமை கணக்கு அதிகாரி மங்களா வரடே, நிர்வாக அதிகாரி சந்தீப் குமார் போசலே, மின்சாரத் துறையின் செயல் பொறியாளர் கிஷோர் காவ்லி மற்றும் சன்ஸ்தானின் அனைத்து துறை தலைவர்களும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் போது உடனிருந்தனர். மேலும் பிபிசிஎல் அறக்கட்டளையின் சார்பில் பொது மேலாளர் மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பீனா மஞ்சுக், பொது மேலாளர் கூடுதல் பொறுப்பாளர் சேசார் தேவேந்திர ஜோஷி, துணை பொது மேலாளர் நிதி சேசார் ராஜேஷ் திகே, துணை பொது மேலாளர் சேசார் சஞ்சய் யாதவ், உதவி நிர்வாகி மற்றும் செயலாளர் முகேஷ் முனேஸ்வர், துணை பொது மேலாளர் இன் மேக்நாதன், அபிஜித் சவான், மகேஷ் எம், ராஜ்குமார் மிஸ்ரா, மனோஜ் ஜாதவ் மற்றும் ஹர்ஷா பிடவட்கா ஆகியோரும் உடனிருந்தனர். நாடு முழுவதிலுமிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஷிர்டிக்கு வருவதால் கோயில் வளாகம், மருத்துவமனைகள், குடிநீர் விநியோக அமைப்பு மற்றும் பிற வசதிகளுக்கு தடையற்ற மின்சாரம் அத்தியாவசியமாக உள்ளது. அதிகரித்து வரும் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு சன்ஸ்தான் மின்சாரத்தில் தன்னிறைவு அடைவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. முன்னதாக ஜனவரி 2024 இல் சுபாவில் உள்ள காற்றாலை திட்டத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் கேப்டிவ் ஓபன் அக்சஸ் மூலம் சன்ஸ்தானுக்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த முயற்சியின் விளைவாக ஜனவரி 2024 முதல் ஜனவரி 2026 வரை சுமார் ரூபாய் 5,64,00,000 மின்சார சேமிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் மகாராஷ்டிர மாநில மின்சார பரிமாற்ற நிறுவனத்தின் பெருநிறுவன சமூக பொறுப்பு CSR நிதியிலிருந்து சுமார் 1.2 மெகாவாட் திறன் கொண்ட ஒரு சூரிய சக்தி திட்டம் ஏப்ரல் 2026 இறுதிக்குள் செயல்பாட்டுக்கு வரும். இது ஆண்டுக்கு சுமார் 18 லட்சம் யூனிட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்து ஏறத்தாழ ரூபாய் 2,08,00,000 சேமிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. BPCL நிறுவனத்தால் அமைக்கப்படவுள்ள 1.7 மெகாவாட் சூரிய சக்தி திட்டம் ஆண்டுதோறும் சுமார் 26 லட்சம் யூனிட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும். இதன் மூலம் ஏறக்குறைய ரூபாய் 2,56,00,000 சேமிக்கப்படும். இது தவிர ONGC நிறுவனத்தால் 1.9 மெகாவாட் தரைத்தள சூரிய சக்தி திட்டத்தை அமைப்பதற்கான முன்மொழிவும் பரிசீலனையில் உள்ளது. தற்போது இந்த நிறுவனத்தின் மொத்த மின் நுகர்வு சுமார் 7.96 மெகாவாட்டாக உள்ளது. முன்மொழியப்பட்ட திட்டம் நிறைவடைந்த பிறகு காற்றாலை, கூரைமேல் சூரிய சக்தி மற்றும் தரைத்தள சூரிய சக்தி ஆகியவற்றின் மூலம் சுமார் 7.3 மெகாவாட் பசுமை ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படும். எனவே இந்த நிறுவனம் விரைவில் மின்சாரத்தில் தன்னிறைவு அடையும் பாதையில் உள்ளது. இந்த முயற்சி சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு ஊக்கமளிக்கும் என்றும் ஸ்ரீ சாய் பாபா நிறுவனம் பசுமை ஆற்றல் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திகழும் என்றும் கூறப்படுகிறது. பென் டிவி தமிழ் சேனலுக்காக சீரடியிலிருந்து சிறப்பு செய்தியாளர் சக்திவேல். मराठी त्याच्यासाठी कारण बाबा जिथे आहे तिथे मराठी आपण सगळे एकत्र बोलतो. इथे उपस्थित आपले खासदार साहेब, कार्यकारी अधिकारी साहेब, इथे उपस्थित संस्थांचे जे पण अधिकारी मंडळ आहेत, भारत पेट्रोलियममधून वीणा मॅडम, देवेंद्र साहेब, राजेश साहेब, यादव साहेब आणि आमचे TM मनोज, महेश, माझे बाकी BPCLचे माझे सेल्स ऑफिसर हर्षा आणि मिश्रा साहेब, मुकेश, सगळ्यांना नमस्कार. आय थिंक
मैम ने बहुत अच्छे से पूरा ब्यौरा दिया। मैं जब पहली बार साहब से मिला था तो तब आई थिंक ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था पंकज जी से, और हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस उसमें की थी। बट उसके बाद जिस तरीके से साहब ने पुश किया एंड बाबा की कृपा से हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनली कंक्लूड कर पाए, उसकी बहुत बहुत खुशी है। हमें इनफैक्ट कल शाम को पता चला, बट हम ये मौका, ये अवसर बिल्कुल गंवाना नहीं चाह रहे थे यहाँ आने का। और इनफैक्ट हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कल शाम भी वी नॉट वेरी श्योर कि हम लोग आ पाएंगे। बट जैसे कहते हैं कि अगर आपको बाबा ने बुलाया तो आप जहाँ भी रहेंगे तो आपको आना ही पड़ेगा। जैसा मैम ने कहा, भारत पेट्रोलियम की तरफ से हमें बहुत बहुत खुशी है कि हम लोग हमारे छोटे से प्रयास से इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ पाए। और ऐसे ही हम लोग जो भी हमारे CSR के जो भी स्तंभ हैं, उसमें जब भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वैसे हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया और इतना आदर सम्मान किया, इतना अच्छा दर्शन किया हम सबका, और थैंक यू। ये आपने ये बड़ी काम जो है CSR का जो इतना 4.45 करोड़ राशि जो है अपने संस्थान को CSR फंड में उपलब्ध की, क्योंकि ये राशि जो है वो बहुत संस्थान को जो है वो उपयोगी होने वाली है। संस्थान को हर साल जो है जो अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, यानी संस्थान का प्रसादालय है, हॉस्पिटल है, भक्त निवास है, सभी प्रोजेक्ट को लगभग कुल मिला के जो है 20 करोड़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 20 करोड़ का। तो ये सब संस्था ने ये निर्णय लिया है, ये सब जो है ये बिल कम करके सब ग्रीन एनर्जी पे हमें डाइवर्ट होने का है। तो इसका पहला इनिशिएटिव जो है वो सर के कालावधि में जो है 2006 में सुपा के पास जो है सर 2.5 मेगावाट का जो है विंड एनर्जी जो है 2 विंड मिल सुपा के पास है, 2007 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो उससे 2.5 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। 1.2 मेगावाट जो है महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारिषद कंपनी इनके तरफ से 4 करोड़ की राशि मिली थी। इससे 1.2 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है अगले महीने में जो है ये शुरू हो जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट जो है 1.7 मेगावाट जो है, ये प्रोजेक्ट से संस्थान के लगभग 2.56 करोड़ का जो हर साल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम हो जाएगा। 1.9 मेगावाट जो है हमारा अभी वार्ड मशीन चालू है ONGC, वो भी सैंक्शन हो गया है। तो संस्थान का टोटल जो 7.96 मेगावाट जो प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो हम अभी कुल मिला के हो गए तो 7.36, यानी लगभग करीब, यानी पूरा सोलर पे जाने का जो प्रयास जो है वो संस्थान का है। इसमें आपने जो योगदान दिया, इसलिए मैं श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से आप सबका धन्यवाद देता हूँ। खासदार साहब ने भी जो है इसके लिए वो जो कोऑर्डिनेशन करने का था बेटर किया, फॉलो किया, इनका भी योगदान जो है। सर 7 साल संस्थान में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके 7 साल काम किया है, और ये 7 साल में बहुत से प्रोजेक्ट जो है ये संस्थान के पूरे हुए। इनका भी योगदान संस्थान के लिए हमेशा रहता है। मैं उनका भी साई बाबा संस्थान की तरफ से उनको भी सर धन्यवाद देता हूँ। रूबी शर्मा, पंकज शर्मा, इन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी का यहाँ धन्यवाद देता हूँ। शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए जो है लगभग हर दिन 60,000 साई भक्त यहाँ थे ड्यूरिंग फेस्टिवल। ये मैक्सिमम जो है 3 लाख से ज़्यादा, यानी नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को 3 लाख से ज़्यादा साई भक्तों ने जो है एक दिन में दर्शन किया है। और प्रसादालय जो चलता है, ये प्रसादालय में 1 जनवरी में 1,10,000 भक्तों ने जो है महाप्रसाद लिया है। महाप्रसाद यानी पूरा खाना उसमें रहता है, दाल चावल 2 सब्जी रहती है, रोटी रहती है, स्वीट रहता है। तो पूरा खाना जो है वो प्रसादालय में चलता है, और उसमें से 99% जो है फ्री रहता है। जिसको VIP में खाना होता है, खाने का VIP में बैठ के खाना खाएंगे तो उनसे सिर्फ 50 रुपये हम लेते हैं। बाकी 99% जो है वो फ्री में खाना चलता है।
हॉस्पिटल का काम भी जो है, 2 हॉस्पिटल है, साईनाथ हॉस्पिटल और साई बाबा हॉस्पिटल, 550 बेड के 2 हॉस्पिटल है। इसमें भी जो है ओपन हार्ट सर्जरी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है, न्यूरो सर्जरी होती है, आई बैंक है, ऑर्थो है, गायनेक है, सब डिपार्टमेंट है। और हर दिन जो है वो 1600-1700 पेशेंट के ऊपर जो है वो ओपीडी के स्तर पर ट्रीटमेंट होती है और 500 पेशेंट जो है वो एडमिटेड रहते हैं। एवरेज में 500 पेशेंट एडमिटेड रहते हैं जिनके पास कुछ नहीं, गरीब है, स्कीम में भी नहीं बैठते, तो उनके सिर्फ 50 रुपए लेते हैं एज ए रजिस्ट्रेशन चार्जेस। और वो 50 रुपए में पूरी ट्रीटमेंट, यानी 50 रुपए में ऑपरेशन भी हो जाता है। तो ऐसा ये चैरिटेबल वर्क संस्था की तरफ से चलता है। यहाँ जो भक्त रहने के लिए आते हैं उनकी निवास व्यवस्था हेतु जो है 2750 रूम्स जो है एसी नॉन एसी रूम्स है और 200 डॉर्मेटरीज है। वहाँ भी जो है किसी के पास 20 रुपए हो गए तो एक दिन वो शिरडी में रह सकता है 20 दिन 20 रुपए से, क्योंकि सिर्फ रहने के लिए 20 रुपए लगते हैं। बाकी प्रसादालय में प्रसाद भोजन तो फ्री में मिलता है, तो 20 रुपए में एक दिन शिरडी में रह सकता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट 20 रुपए से रहने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। जिसको एसी रूम लगता है एसी रूम, नॉन एसी रूम, ऐसा। जो पेशेंट संस्थान के हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, बाहर है, जो हॉस्पिटल संस्थान के चैरिटी पे है, उस हॉस्पिटल में भी यदि पेशेंट एडमिट है तो उसके लिए भी 50,000 का सहयोग जो है वो साई बाबा संस्थान की तरफ से दिया जाता है। ऐसे ही बहुत चैरिटी वर्क जो है वो संस्थान की तरफ से किया जाता है। वो चैरिटी वर्क जो है वो जो डोनेशन संस्थान को मिलता है उससे ये सब चलता है। उस जो चैरिटी का हमारा जो रथ जो है उसमें आपने जो योगदान दिया, इसके लिए मैं फिर एक बार श्री साई बाबा संस्थान की तरफ से आप सभी का, आपकी कंपनी के सभी चेयरमैन, एमडी सभी जो है और आप सबका जो है साई बाबा संस्थान की तरफ से फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। ओम साई राम। बीपी सेल के माननीय श्रीमती मीना जी, महाव्यवस्थापक CSR माननीय देवेंद्र जोशी, माननीय राजेश जी टीके, माननीय संजय जी यादव, माननीय केलविन जी, माननीय मुकेश जी, माननीय विश्वनाथ जी, माननीय चौहान, माननीय महेश, माननीय राजकुमार मिश्रा, माननीय संस्थान के शिव गोरक्षनाथ गढ़ीकर, माननीय कचरे मैडम, माननीय पंकज जी शर्मा, माननीय रवि शर्मा, मेरी वाइफ सरस्वती, सभी अधिकारी, धराटे साहब, सदाशिव वाप किशोर, सभी मान्यगण कर्मचारी, सभी उपस्थित भाई बहन, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आज बाबा की इस पवित्र स्थल पे एक अच्छा, छोटा है बट अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, जिसका कारण बाबा का एक बड़ा सेवा का माध्यम आपको मिला है, मुझे मिला है, सभी को मिला है। बाबा की सेवा ईश्वर सेवा है। मैं तो बताया साहब ने कि 7 साल में एज ए CEO रह चुका हूँ। बाबा ने बड़ी सेवा मेरे हाथ से करवा ली है, मैंने कुछ नहीं किया, बाबा ने करवा लिया। अब उसका फल क्या मिलता है आपके सामने। मैं एक बार में 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिला, बाबा ही सेवा का फल है। तन मन धन से जो बाबा से पूजा करता है, बाबा की अर्पित होता है, बाबा फल देता ही है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो अमेरिका से, दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, 24 घंटे प्रवास करके यहाँ आते हैं केवल 5 मिनट के दर्शन के लिए और एक आरती के लिए 20 मिनट के आते हैं। उनके मन में खाली बाबा की सेवा, बाबा की प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना सफल होने वाले भी लोग मैंने देखे हैं। इसलिए आप जो बाबा की सेवा आपके माध्यम से हुई, बाबा के आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेंगे। मैं बाबा को पहले प्रार्थना रखता हूँ कि बाबा के आशीर्वाद
आपके साथ जुड़े रहे, आपके हाथ से बाबा का काम होते रहे। सामने मुझे शिवदा बाबा की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला। मुझे जिस सोलर प्रोजेक्ट से आप कर रहे हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री का एक बड़ा सपना है, सरकार का एक बड़ा सपना है कि दुनिया में इतना पोटेंशियल खाली इंडिया में है। जो जमीन, जो सूर्य की किरणों की, जो आज देख रहे हैं कि आज 90, मुझे लगता है कि 2015 में अनाउंसमेंट हुई थी लंदन में, मोदी साहब ने किया था। मैं उनका भाषण उस दिन बहुत सुन रहा था, मैं गुड़ा में था और टीवी में मैंने भाषण सुना था। आज देखो हिंदुस्तान में पूरी जगह सोलर का इतना बड़ा ये हो रहा है, और ये देश के लिए, देश की भविष्य के लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं 2003 में माउंट आबू गया था। माउंट आबू आप लोग गए होंगे, हमारे चेयरमैन थे सत्तर, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, देखो वहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसा खाने की व्यवस्था है, कैसी बाकी की व्यवस्था है। तो एक टीम लेके गई थी मेरे एम्प्लॉयज़ की। हमने वहाँ देखा, पहला वहाँ का प्रोजेक्ट देखा, बिजली का वो प्रोजेक्ट हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के बाद तिरुपति आए देखने के लिए। तिरुपति लोगों ने वो हमारा यहाँ का सीढ़ी का जो इम्प्लीमेंट किया हुआ सोलर प्रोजेक्ट, पहले उन्होंने भी इम्प्लीमेंट कर लिया। इसका मतलब है तिरुपति को भी गाइडेंस हमारे संस्थान से हुआ है। और सामने बताया उसी तरह से 2006 में हमने टू विंड मिल का पार्लर में, जिसके कारण उसी वक्त जो हर वक्त डीजल की बात होती थी, डीजल, तो 2 विंड मिल लगाए। तो मुझे लगता है 2 मेगावाट 3 मेगावाट का कुछ 2.5 हाँ हमें का उस वक्त फायदा हुआ। आज 7.5 मेगावाट का तक हम पहुँचे हैं। मुझे लगता है 10 मेगावाट का मैंने विषय भी लगता था बोर्ड के सामने, मुझे लगता है 2006 की बात है, और आज उसकी पूर्ति हो रही है। उसके पूर्ति के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। मैं आगे भी आपको विनती करूँगा, जब जब चाहे 10 पूर्ति करने के आपके सभी के सहयोग रहेगा तो रहे, ये मेरी आपको भी विनती रहेगी। इस वक्त ये करने में रियल गाड़िका साहब का तो योगदान है, लेकिन हमारे मित्र मिस्टर पंकज शर्मा कोऑर्डिनेटर, उनका भी बड़ा सहयोग रहा चुका है, वाइटल सहयोग चुका है। उनको मैं पहले से धन्यवाद दूंगा कि बाबा की सेवा, बाबा के भक्त है, बाबा की सेवा वो पहले समझ। उनका मैगजीन भी है, उनकी वाइफ तो उनके मैंने खिलाना, भक्तों भी कुछ जो लोग होते हैं गरीब लोगों को खिलाना का भी काम करते हैं। अच्छा, उनका भी भोजन व्यवस्था भी की जाती गरीबों के लिए। ऐसे अनेक काम वो लोग करते हैं और बाबा की मन से सेवा करते हैं। मैं आपको भी इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। और दूसरे मिस्टर जो किशोर गौड़ी है, उसका भी बड़ा सहयोग है इसके लिए, फॉलो करना, प्रोजेक्ट करना, यानी ये टीचर कांटेक्ट करना जो बात है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो भी उन्होंने उसके लिए उसके कार्य को, उसके काम को मन से धन्यवाद। ये बड़ा एक उनके चाचा जी ना बड़े संत है, 12 साल उन्होंने भूमिगत तपस्या की, ऐसे बड़े संत है। उनका भी बड़ा मंदिर है, उसको भी बाबा से बड़ी दिलचस्पी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जिनका गाड़ी का साहब भी एक अच्छे अधिकारी है, उनको भी मेरे जैसे सभी को मिलना जुलना, सभी को स्वागत करना, ये तो काम जिसका है, बाबा का काम जो है ये इम्पोर्टेंट है। मैं था उसी वक्त बहुत लोग टीका टिप्पणी करते थे, मैं कभी सुनता नहीं था, देखता नहीं, मैं आगे चलता था, काम करता था, लेकिन वो टीका टिप्पणी आज उनको परिचित हुई कि ये करना कितना जरूरी है। और वही रास्ते पे गाड़ीकर साहब जा रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके हाथ से यही सेवा, बाबा की सेवा अच्छी तरह चल रही है, वैसी अच्छी तरह चले, यही प्रार्थना रखता हूँ।
भविष्य में संस्थान के लिए ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं तो आपके साथ हूँ। मुझे एक बड़ी चिंता है वो 598 कर्मचारी की। वो राजीव साहब ने अभी बात की थोड़ी सी, मैं विषय यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप मुझे कुछ फीडबैक दें। तो यहाँ के लॉ सेक्रेटरी अभी मेरे मित्र है, सीएम साहब से भी बात कर सकता हूँ और कोर्ट के माध्यम से ये क्वेश्चन अब ये सवाल ये 598 एम्प्लॉय का हम हल कर सकते हैं। ये करने के लिए भी बाबा हमें शक्ति दे और इनका ये 598 एम्प्लॉयज़ का उनका रिटायरमेंट एज ए परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो, यही प्रार्थना रखता हूँ। अभी जो कुछ हो हमेशा आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ हूँ और बाबा की सेवा का मौका हमेशा आपको भी मिले, मुझे भी मिले, ये बाबा को प्रार्थना करता हूँ। पुनश्च आपको सभी को बाबा के आशीर्वाद मिले, ये प्रार्थना करके मेरे 2 शब्द पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।